Tonight the Lord wanted me to share with you from Ezekiel 34 and verse 26. आज रात प्रभु चाहता है कि मैं आपके साथ यहेजकेल 34 अध्याय उसके 26 पद में से बात करूं। God says, परमेश्वर कहता है, I will send you showers on time. मैं ठीक समय पर मेघ को बरसाऊंगा। I will send you showers of blessing. मैं तुम पर आशीष की वर्षा करूंगा। Showers of blessing. आशीष की वर्षा। Tonight, showers of blessing are going to come upon you and your family. आज रात आप पर और आपके परिवार पर आशीषों की वर्षा होने जा रही है। In another translation, the Bible says, God comes upon us like a rain. एक दूसरे अनुवाद में लिखा है कि परमेश्वर वर्षा के समान हम पर उतरता है। And in Hosea 6 and verse 3, और होशे 3 उसके 6 पद में, and Psalm 72 and verse 6, और भजन संहिता 72 उसके 6 पद में, the Bible says the Lord Himself is that rain. बाइबल बताती है परमेश्वर स्वयं वो वर्षा है। The Lord Himself will come upon you as a rain. परमेश्वर स्वयं वर्षा के समान आप पर आएगा। Yes, till now you may have had only problems coming upon you like a rain. हाँ, हो सकता है कि अब तक आप पर केवल समस्याएं ही वर्षा के समान आई हों। The guilt of sin coming upon you like a rain. पाप का दोष आप पर वर्षा के समान आया हो। Losses in life coming upon you like a rain. जीवन में हानियां वर्षा के समान आप पर आई हो। Loneliness coming upon you like a rain. अकेलापन आप पर वर्षा के समान आया हो। The demonic oppressions coming upon you like a rain. दुष्ट का सताव आप पर वर्षा के समान आया हो। Today the Lord Jesus says, लेकिन आज प्रभु यीशु कहता है, I'm going to change everything for you. मैं तुम्हारे लिए सब कुछ बदल दूंगा। From now on, I am going to come upon you like a rain. अब से मैं तुम पर वर्षा के समान आऊंगा। Jesus said, I am the way. यीशु कहता है, मैं ही मार्ग हूँ, I am the truth. मैं ही सत्य हूँ, I am the light. मैं ही जीवन हूँ। My children, मेरे बच्चों, I will open a new way for you. मैं तुम्हारे लिए एक नया द्वार खोलूंगा। I will come upon you like a rain. मैं मेघ के समान तुम पर आऊंगा। And it will be showers of blessing from heaven. और आज से आशीषों की वर्षा होगी। Yes, the Bible says हाँ, बाइबल बताती है in Deuteronomy 23 and verse 5, व्यवस्था विवरण 23 उसके 5 पद में, when God's blessings comes, जब परमेश्वर की आशीषें आती हैं it destroys the curses. तो ये श्रापों का नाश कर देती हैं। And 1 John 3:8 says, और पहला यूहन्ना 3 का 8 पद कहता है, Jesus Christ, the Son of God, came into this world to destroy the works of the परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह संसार में शैतान के कामों का नाश करने के लिए आया। Tonight he is coming to you. आज रात वो आपके पास आ रहा है। Tonight he is coming to you. आज रात वो आपके पास आ रहा है। Tonight he is coming to you. आज रात वो आपके पास आ रहा है। Yes, I see another name, Rita. हाँ, मुझे एक और नाम रीटा दिखाई दे रहा है। God touches you, Rita. परमेश्वर ने आपको स्पर्श किया है रीटा। Your bones are being healed and your blood is being healed. आपकी हड्डियां और लहू ठीक किया जा रहा है। Yes, glorify God. हाँ, परमेश्वर की स्तुति करें। Power of God is still flowing amongst us. परमेश्वर की सामर्थ्य अभी भी हमारे मध्य बह रही Jesus is coming. है। यीशु आ रहा है। Jesus is coming. यीशु आ रहा है। All your curses will turn into blessing. आपके सब श्राप आशीषों में बदल जाएंगे। He's coming like a rain. यह वर्षा के समान आ रहा है। He's coming like a rain. यह वर्षा के समान आ रहा है। Maybe you are caught up शायद आप फंसे हुए हैं and you are bound और आप बंधन में हैं and you're not able to come out. और बाहर नहीं आ पा रहे, But the rain will come and wash away everything. लेकिन वो वर्षा आएगी और सब कुछ धो डालेगी। And he'll make everything new in your life. और आपके जीवन में वो सब कुछ नया कर देगा। And that's why Jesus says, और इसीलिए यीशु कहता है, my children, मेरे बच्चों, my son, मेरे बेटे, my daughter, मेरी बेटी, standing at the door of your heart and I am knocking. मैं तेरे दिल के द्वार पर खड़ा खटखटा रहा हूँ। If you hear my voice यदि तू मेरी आवाज को सुने and open the door of your heart और अपने दिल के द्वार को खोले and say, Jesus, और कहे, यीशु come into my heart. मेरे दिल में आइए, Come into my heart. मेरे दिल में आइए, I will come in. तो मैं अंदर आऊंगा। I will come in. मैं अंदर आऊंगा। I'll come as a rain मैं वर्षा के समान आऊंगा and I will give you a banquet. और मैं तुम्हारे लिए दावत दूंगा। Every blessing. प्रत्येक आशीष। I will open the windows of heaven and pour down a blessing which you cannot hold. मैं स्वर्ग की खिड़कियां खोलकर ऐसी आशीष बरसाऊंगा जिसे तुम संभाल नहीं सकोगे। That's what is happening tonight. आज रात यही होने जा रहा है। Yes, he's opening the heart हाँ, वो दिलों को खोल रहा है and he's coming into you. और वो आपके अंदर आ रहा है। Blessings are being poured upon you.
और आप पर आशीषें उंडेली जा रही हैं। Just say thank you, Jesus. बस कहें धन्यवाद यीशु। You don't need to do anything. आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। Just say thank you, Jesus. बस कहें धन्यवाद यीशु। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Just praise Him where you are. आप जहां भी हैं बस उसकी स्तुति करें। God is coming as a rain into you right now. परमेश्वर इसी समय वर्षा के समान आपके अंदर आ रहा है। Let not your heart be troubled. आपका हृदय व्याकुल ना हो। Let not your heart be troubled. आपका हृदय व्याकुल ना हो। God's delivering power is coming into you right now. परमेश्वर की छुटकारा देने वाली सामर्थ्य इसी समय आपके अंदर आ रही है। And in Hosea 10 and verse 12 और होशे 10 उसके 12 पद में and Joel 2:23, और योएल 2 उसके 23 पद में the Bible says God comes as a rain of righteousness upon you. बाइबल कहती है परमेश्वर धार्मिकता की वर्षा के समान आप पर आता है। Yes, He rains righteousness, हाँ, वो धार्मिकता को बरसाता है, holiness, पवित्रता को बरसाता है, sanctification, शुद्धता को बरसाता है, pure life शुद्ध जीवन को बरसाता है। within you. आपके अंदर It comes as a rain. यह वर्षा के समान आता है। Righteousness comes as a rain. धार्मिकता वर्षा के समान आती है। The holiness comes as a rain. पवित्रता वर्षा के समान आती है। Maybe you are caught up in the guilt of sin. शायद आप पाप के कारण आई दोष की भावना में फंसे हुए हैं And you say, I'm cursed because I have committed some sin. और आप कहते हैं मैं श्रापित हूं क्योंकि मैंने ये पाप किया And I'm not able to enjoy God. और मैं परमेश्वर का आनंद नहीं ले पा रहा हूं। I'm not able to pray. मैं प्रार्थना नहीं कर पा रहा हूं। I'm not able to hear the voice of मैं God. परमेश्वर की आवाज को नहीं सुन पा रहा हूं। I'm not able to enjoy miracles. मैं चमत्कारों का अनुभव नहीं कर पा रहा हूं। Tonight, लेकिन आज रात God is coming to you as a rain of righteousness. परमेश्वर धार्मिकता की वर्षा के समान आप पर आ रहा है। He's going to pour His righteousness upon वो you. अपनी धार्मिकता को आप पर बरसाने जा रहा है। He's going to fill you. वो आपको परिपूर्ण करने जा रहा है। When the rains came in Houston, Texas, some time ago, जब वर्षा आई कुछ समय पहले ह्यूस्टन टेक्सास में, nobody could stop the waters. तो पानी के बहाव को कोई रोक नहीं पाया। It just flowed everywhere. यह हर जगह भर गया। It filled every house. प्रत्येक घर में पानी भर गया And everything that was bad was washed away. और यह हर प्रकार के कूड़े करकट को बहा कर ले गया। Nobody could stop it. कोई इसे रोक नहीं पाया। In the same way, और इसी प्रकार से God is coming as a rain. परमेश्वर वर्षा के समान आ रहा है। Cleanse you tonight. आज रात आपको शुद्ध करने के लिए Everything that is stuck to you, which you are not able to remove from your life, is going to be washed away by that rain. प्रत्येक ऐसी बात जिससे आप छूट नहीं पा रहे हैं, जिसे अपने जीवन से हटा नहीं पा रहे हैं, आज रात यह वर्षा उसे बहा ले जाएगी। Let not your heart be troubled. आपका हृदय व्याकुल ना हो। Yes, sin is terrible. हाँ, पाप भयानक है। We are unable to become God's children when sin comes into us. जब पाप हमारे अंदर आ जाता है तो हम परमेश्वर के बच्चे नहीं बन पाते। The devil has the sway in our life. हमारे जीवन में शैतान की प्रभुता होती है। Guilt has the sway in our life. हमारे जीवन में अपराध बोध की प्रभुता होती है। Curses have the sway in our life. हमारे जीवन में श्रापों की प्रभुता होती है। Because the Bible says क्योंकि बाइबल कहती है in Romans 6:23, रोमियो 6 उसके 23 पद में, the wages of sin is death. पाप की मजदूरी मृत्यु है। All have sinned and have come short of the glory of God. सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। He came as a rain, वो वर्षा के समान आया, a rain of blessing. आशीषों की वर्षा के समान। How does He send His blessing? वो अपनी आशीष कैसे भेजता है? How does He send His rain upon us? वो अपनी वर्षा हम पर कैसे भेजता है? It's not just a rain of blessing. यह केवल आशीष की वर्षा नहीं होती, It's the rain of His blood that He shed on the cross for us. यह उसके उस लहू की वर्षा होती है जो उसने क्रूस पर हमारे लिए बहाया। He hung on the cross. वो क्रूस पर लटक गया। Isaiah 53 and verse 5 says, यशायाह 53 उसका 5 पद यह बताता है, He was wounded for our transgressions, our sins. वो हमारे अपराधों और पापों के लिए घायल किया गया। The body of Jesus, who is God in flesh, was bruised for our iniquities. यीशु जो शरीर में परमेश्वर था, उसका शरीर हमारे ही अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। He offered Himself as a sacrifice. उसने अपने आप को बलिदान के रूप में दे दिया। The Bible says बाइबल बताती है in Hebrews 9:22, इब्रानियों 9 उसके 22 पद में, there is no forgiveness of sin without the shedding of blood. बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं होती, And no man's blood is holy in the world. और संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसका लहू पवित्र हो।
So God himself came in the form of Jesus. इसलिए परमेश्वर स्वयं यीशु के रूप में धरती पर आ गया। Only his blood is holy. केवल उसका लहू ही पवित्र है। He had to have blood. उसके पास लहू होना जरूरी था, That's why he took the form of a human being. और इसीलिए उसने मनुष्य का रूप धारण किया। He was conceived supernaturally in the womb of a virgin. उसने अलौकिक रीति से एक कुंवारी के गर्भ में प्रवेश किया। Holy in birth, जन्म में पवित्र, holy in life. जीवन में पवित्र। In John 19:4, यूहन्ना 19 उसके 4 पद में the Roman governor could not find any fault in him. रोमी राज्यपाल को उसमें कोई दोष नहीं मिला। He said, I find no guilt in this man. उसने कहा, मैं इस व्यक्ति में कोई दोष नहीं देखता। He's perfect. ये बिल्कुल सिद्ध है, He's perfect. ये सिद्ध है, He's perfect. ये सिद्ध है। Jesus went to the cross perfect and holy. यीशु सिद्ध और पवित्र रहते हुए क्रूस पर चढ़ा। He shed his blood, perfect blood, for the remission of every man, every woman's sin. उसने प्रत्येक आदमी, प्रत्येक औरत के पाप के लिए अपना सिद्ध लहू बहाया। The Bible says बाइबल कहती है in 1 John 1:7, पहला यूहन्ना 1 उसके 7 पद में, the blood of Jesus Christ cleanses us from all sins. यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। Blood of Jesus Christ comes as a rain and washes away all sin. यीशु मसीह का लहू वर्षा के समान आता है और सारे पाप को धो You देता all है। shout all sin. आइए हम सब कहें सारे पाप को। Amen. आमीन। All sin. सारे पाप को, All sin. सारे पाप को। Tonight, all sins will get out of us. आज की रात हर प्रकार का पाप हम में से निकल जाएगा। All guilt will get out of us. हर प्रकार का अपराध बोध हम में से निकल All जाएगा। curses will get out of us. हर प्रकार का श्राप हम में से निकल जाएगा। If only we open our heart to Jesus. यदि केवल हम यीशु के लिए अपने दिल को खोल दें। He is knocking at the door of your heart. वो आपके दिल के द्वार पर खड़ा खटखटा रहा है। He loves you. वो आपसे प्रेम करता है। He loves you. वो आपसे प्रेम करता है। Maybe you are crying for your husband, शायद आप अपने पति के लिए रो रही हैं, crying for your wife, अपनी पत्नी के लिए रो रहे हैं, crying for your children. अपने बच्चों के लिए रो रहे हैं। You believe in the Lord Jesus Christ. आप प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करें You and your children, you and your household will be saved. और आप और आपका पूरा घराना बचाए जाएंगे। Tonight the rain will come upon the whole family. आज रात पूरे परिवार पर वर्षा आएगी। Surely he will cleanse you. निश्चय वो आपको शुद्ध करेगा। No more tears. अब से आंसू नहीं रहेंगे। And his body was wounded. और उसका शरीर घायल किया गया And by his wounds, we are healed. और उसके घावों के द्वारा हम चंगे किए जाते हैं। Tonight you can be healed of any disease. आज रात आप किसी भी बीमारी से चंगाई पा सकते हैं। Jesus paid the price. यीशु ने कीमत चुकाई है। Paul, Dinakaran or Evangeline are not the healers. पॉल दिनकरण या इवेंजेलिन चंगाई देने वाले नहीं हैं। It is the one who died for you on the cross. चंगाई देने वाला वो है जिसने क्रूस पर आपके लिए अपनी जान दी। All your sicknesses on his body through his wounds. अपने घावों के द्वारा आपकी सब बीमारियों को अपने शरीर पर ले लिया Rose up alive. और फिर जीवित हो गया। And who is alive even today? और जो आज भी जीवित है, Jesus Christ. यीशु मसीह। As you call his name, जब आप उसके नाम को पुकारेंगे he will come as a rain to you तो tonight. आज रात वो वर्षा के समान आप पर आएगा And he will heal all your wounds. और आपके सब घावों को चंगा करेगा। All the wounds in your heart. आपके दिल के सब घावों को चंगा करेगा। All the wounds in your family. आपके परिवार के सब घावों को चंगा All the करेगा। wounds in your body. आपके शरीर के सब घावों को चंगा करेगा All the wounds in your soul. और आपकी आत्मा के सब घावों को चंगा करेगा। The blood of Jesus Christ will wash away every evil power. और यीशु मसीह का लहू प्रत्येक दुष्ट शक्ति को धोकर मिटा डालेगा। You will be the possession of God from tonight. आप आज रात से परमेश्वर की संपत्ति बन जाएंगे। Glory of God will be in you. परमेश्वर की महिमा आपके अंदर होगी Your body will be the temple of God. और आपका शरीर परमेश्वर का भवन बन जाएगा। This is God's promise for you. आपके लिए यही परमेश्वर की प्रतिज्ञा How है। many of you want Jesus to come into your heart right now? आप में से कितने चाहते हैं कि इसी समय यीशु आपके हृदय में आए? Tell him, Jesus, उससे कहें, यीशु have mercy on me. मुझ पर दया करें,
come upon me as a rain, Lord. वर्षा के समान मेरे ऊपर आए प्रभु। Come on, open your heart and cry. अपने दिलों को खोल कर पुकारें। If your children have to come to God, यदि आपके बच्चों को परमेश्वर के पास आना your है, husband has to come to the Lord, यदि आपके पति को प्रभु के पास आना if है, you have to come to the Lord, यदि आपको प्रभु के पास आना है, you cry. तो आप पुकारें। This is the moment. यही वो पल है, This is the moment. यही वो पल है। Jesus is by your side. यीशु आपके पास खड़ा है, Jesus is by your side. यीशु आपके पास खड़ा है। Cry. आप पुकारें, You cry. आप He पुकारें। is coming to you now. इसी समय वो आपके पास आ Wherever रहा you है। are, God is coming to you. जहां पर भी आप हैं, प्रभु आपके पास आ रहा Now है। His grace will fill you. इसी समय उसका अनुग्रह आपको His भरेगा, blood will can cleanse you. उसका लहू आपको शुद्ध करेगा। You will be full of the rain of the blood of Jesus Christ. आप यीशु मसीह के लहू की वर्षा से भर जाएंगे। Love of Jesus never fails. लेकिन यीशु का लहू कभी असफल नहीं होता। He is walking amongst you. वो आपके मध्य चल रहा है। Just say thank you, Jesus. बस कहें धन्यवाद यीशु। Come on, look up to Him in your spirit and say, Jesus, you have come to me. Thank you, Lord. अपनी आत्मा में यीशु की ओर देखें और कहें धन्यवाद यीशु, आप मेरे पास आए। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु, Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। Everybody thank Him now. सब लोग इसी समय उसका धन्यवाद करें। God is coming into you. परमेश्वर आपके अंदर प्रवेश कर रहा है। God is coming in. परमेश्वर आपके अंदर आ रहा है। God is coming into you. परमेश्वर आपके अंदर आ रहा है। Loving Jesus. प्रेमी यीशु, I know you love each one of these thy children. मैं जानता हूं आप इनमें से अपने प्रत्येक बच्चे से प्रेम करते Remember हैं। how you shed your blood for each one, Lord. प्रभु स्मरण करें कैसे आपने प्रत्येक के लिए अपने लहू को बहाया है। Wash them with your blood. उन्हें अपने लहू से धो दें। Let every sin be washed away right now. इसी समय प्रत्येक पाप धो डाला जाए। Let every curse be washed away from their lives and their families in Jesus' name. यीशु के नाम में उनके जीवन में से प्रत्येक पाप और प्रत्येक श्राप धो डाला जाए। Wipe away their tears, Lord. उनके आंसुओं को पोंछे प्रभु। Embrace them, उन्हें गले लगाएं, kiss them, उन्हें चूमे and walk into their heart now, Lord Jesus. और इसी समय उनके दिलों में चले फिरे प्रभु यीशु। Drive out the sin. पाप को निकाल डालें, Drive out the devils. शैतान को निकाल डालें, Drive out the fear. भय को निकाल डालें, Drive out the curses, Lord. श्रापों को निकाल डालें प्रभु। Set your children free. अपने बच्चों को स्वतंत्र करें Lord Jesus. प्रभु यीशु। Possess them, Lord. उनमें बस जाएं प्रभु। Fill them, Lord. उन्हें भर दें प्रभु। Empower them, Lord. उन्हें सामर्थ्य दें प्रभु। Transform everyone tonight. आज रात प्रत्येक जन को बदल दे। Everyone tonight. प्रत्येक को आज रात बदल दे। Thank you for taking over every life and filling it with God. प्रत्येक जीवन को अपने हाथ में लेने और इसे परमेश्वर से परिपूर्ण करने के लिए धन्यवाद। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु, Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। God is filling you right now. परमेश्वर इसी समय आपको परिपूर्ण कर रहा है। My brother, my sister, my darling children. मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे प्रिय बच्चों, God is filling you right now. परमेश्वर इसी समय आपको परिपूर्ण कर रहा है। Open your heart, believe it, and say thank you, Jesus. बस अपने दिलों को खोलें, विश्वास करें और कहें धन्यवाद यीशु। Thank you for coming into my heart. मेरे दिल में आने के लिए आपका धन्यवाद। Come on, everybody, open your heart and praise Him and rejoice. सब लोग अपने दिलों को खोलकर उसकी स्तुति करें और आनंद करें। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो, Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। Whoever needs healing, give it to them. जिस किसी को भी चंगाई की आवश्यकता है प्रभु उन्हें दे। Thank you for giving them a new life. उन्हें नया जीवन देने के लिए आपका धन्यवाद। We love you. हम आपसे प्रेम करते We हैं। love you, Jesus. हम आपसे प्रेम करते हैं We यीशु। love you, Jesus. हम आपसे प्रेम करते हैं यीशु। Again, you're telling me that you are healing the eyes of the people. आप फिर से मुझे बता रहे हैं कि आप लोगों की आंखों को चंगा कर रहे हैं। Let them see normally in Jesus' name. यीशु के नाम से वे सामान्य रीति से देखने Let पाए। their skin be healed normally in Jesus' name. उनकी त्वचा यीशु के नाम से ठीक होकर सामान्य हो Let जाए। them be well in Jesus' name. वो यीशु के नाम से ठीक हो जाए। We're going to honor God. हम परमेश्वर को आदर देंगे। Let's keep on enjoying God's power. आइए परमेश्वर की सामर्थ्य में आनंदित होते रहें। We love you, Jesus. हम आपसे प्रेम करते हैं In यीशु। Jesus' name. यीशु के नाम में Amen. आमीन। Amen.